This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another interesting vocabulary session, and I conduct this session every Monday and Wednesday, 12 to 12:30. And believe in me or not, that two sessions are pretty enough for learning vocabulary. If I conduct this session every day, you won't have time to revise, you won't have time to memorize because I usually share up to 30 words in 30 minutes. And sir, how should we memorize all these words? I always give you an advice that you must have something before you in your room where you spend a lot of time. Suppose you spend a lot of time in your study room, in your bedroom, or in your kitchen. You should paste a paper at least. If you cannot afford a whiteboard, as I advised you last time, that buy a whiteboard of rupees 1000 rupees. Now, very small whiteboards are also available for kids. You can also buy that whiteboard. I don't mind. And buy not only one, buy three whiteboards and just place one in the kitchen, place one in the bedroom, and place one in the drawing room or lounge where you spend a lot of time, where you can see it easily, and write 5 words only. If you have a very small whiteboard, like size of that whiteboard is 12 inches only, so just write 5 words. And when you write 5 words, you are in the kitchen, look at those words. In the bedroom, look at five different five. People will say you पागल हो गई है. जिस दिन किसी ने आपसे ये कह दिया पागल हो गई है, बस वो दिन है जहां से आपकी लर्निंग का आगाज होगा. हम तो शायद अपनी जिंदगी में हर रोज ये जुमला सुनते थे, भाई पागल हो गए. जब हम स्टूडेंट्स थे, पागल हो गए. तो आज देख ले कहाँ पर है. पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के पढ़ता है. आपको कुछ भी बेटा कुछ सीखना होता है ना, उसके लिए पागलपन बहुत जरूरी है. तो पागलपन के लिए आपको थोड़ा सा वो काम करना होगा जो थोड़ा सा डिफरेंट हो. मैंने आपको क्या एडवाइस किए, वो 100 और रुपीज के आ रहे हैं. वो 100 रुपीज, 150 रुपीज आपने देखे होंगे लाजमी तौर पर. बच्चों के टॉयज शॉप पे जाते हैं ना, छोटे छोटे व्हाइट बोर्ड्स है, वो ले लें. और उसको कहीं पर उसको हैंग करने का भी ऑप्शन होता है, आप उसको हैंग कर दीजिए. और बस रोज आना ये किया करें, व्हेन यू अटेंड दिस लेक्चर, अब आपने ये वोकैबुलरीज उसके ऊपर लिख देनी. अगर सेंटेंस लिखना पॉसिबल हो तो बोर्ड मार्कर से आप लिख सकते हैं, उसके बैक साइड पे भी आप लिख सकते हैं. सो यही एक तरीका है. मैंने अपने बेडरूम में, शादी से पहले के वाकई आते हैं, मैंने अपने बेडरूम में व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ था बड़ा सा. And I used to write on that whiteboard to improve my handwriting and to memorize vocabulary. I used to extract vocabulary every Saturday. मैं एक सैटरडे को बैठ के डिक्शनरी में से तकरीबन 50-60 वर्ड्स निकालता था. और फिर पूरे हफ्ते I used to revise them, I used to learn them, I used to share with them. Up sharing is also learning. If you share vocabulary, you will learn. Luckily, you are a part of SKH Spoken English online course. So try to use those vocabulary every day in your spoken class, in your discussion class, where you can implement, and try to memorize 50 to 60 words every week. And don't stop this. Don't stop this. Keep learning vocabulary. I invite my even previous students in this session कि आप बेटा सीखते रहे. Vocabulary should never end. Course will end, but vocabulary learning should never end. और इसी तरह से मैं 2 दिन जो है आपको डिस्कशन क्लास की भी ऑफर देता हूँ कि बेटा कोर्स मुकम्मल हो जाए, अपना 1-to-1 डिस्कशन लेते रहे. ठीक है, कल सुबह में इसी टाइम पर 1-to-1 डिस्कशन होगी. चले भाई, बी ऑल गो. बहुत ही ज्यादा मसरूफ होना. कल लास्ट टाइम मेरा आखिरी वर्ड ये था, ये पीडीएफ मुकम्मल नहीं हुई थी. सो आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम हियर. बी ऑल गो. इट हैज बीन ऑल गो सिंस द न्यू बॉस टुक ओवर. यानी कि हम बहुत मसरूफ हैं. आर यू ऑल गो? क्या तुम मसरूफ हो? द ऑफिस इज ऑल गो ऑन मंडेज. यानी कि ऑफिस मुकम्मल तौर पे मसरूफ होता है भाई. विद द किड्स एट होम, इट्स ऑल गो.
इट्स ऑल गो ऑल डे। ये आप लोगों का जुमला है। बच्चों के साथ घर में तो भाई हर वक्त मसरूफ रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप लोग क्लासेस के लिए टाइम निकालते हैं। आई रियली अप्रिशिएट। बी अवेयर ऑफ समथिंग और समबडी। स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपकी आंखों में चीजें दिमाग में नक्श हो जाए। बी अवेयर ऑफ समथिंग और समबडी। अवेयर ऑफ का मतलब होता है वाकिफ होना किसी से या किसी चीज से। देखो ये जो एस टी एच होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस टी एच का मतलब होता है समथिंग भी आ सकता है और somebody भी आ सकता है। जैसे आई एम अवेयर ऑफ योर प्लान्स। बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स व्हेन ट्रेवलिंग। होशियार रहो जरा, वाकिफ रहो इस बात से जब अपनी आसपास से जब तुम कहीं सफर करो। शी इज अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ द जॉब। आई वॉजेंट अवेयर ऑफ हिज फीलिंग्स अंटिल इट वॉज टू लेट। मुझे नहीं पता था उसके, मैं वाकिफ नहीं था उसके जज्बात से। आई एम नॉट अवेयर ऑफ योर प्लानिंग। आर यू अवेयर ऑफ हिज प्लानिंग्स? नो सर, नॉट एट ऑल। बी चीज्ड ऑफ। किसी चीज से या शख्स से नाराज होना। सर आई एम cheesed off with you. Why, beta? Why? He was cheesed off with the constant delays. Sir, you don't reply. That's why I'm cheesed off with you. I had been very busy for the last 3 days. Yesterday, due to death of one of my neighbors, and day before yesterday, my mom and dad, they were going to Lahore, so that's why I was very busy in packing and other stuff. I'm cheesed off with waiting for her all the time. Yes, ये जुमला बड़ा अच्छा है। मैं मतलब नाराज हूँ, आजिज हूँ, तंग आ गया हूँ, मैं तंग हूँ उसका इंतजार करते करते, हर वक्त उसका इंतजार करना पड़ता है। शी गॉट चीज्ड ऑफ, वो नाराज हो गई, परेशान हो गई, आजिज आ गई। शी गॉट चीज्ड ऑफ व्हेन ही कैंसल्ड देयर प्लान्स अगेन। किसी से, शख्स, चीज से या शख्स से नाराज होना, इसकी और भी बहुत सारी उर्दू है। तंग होना, आजिज होना। तंग होना, आजिज होना। बी क्रूशल टू somebody or something, to some, to something or for something। मतलब बहुत अहम होना, extremely important और necessary। Regular exercise is crucial for good health। Yes sir, this is a very good sentence। His support was crucial to the project success। It's crucial that we finish this on time। ये बड़ा अहम है कि हम इसको वक्त पर खत्म करें। रिवाइज करने का एक तरीकेकार और भी होता है कि आप सेंटेंसेस को रिपीट करें, तो वो आपकी जबान पर वो सेंटेंस जब आता है ना, तो देन यू यूज इट। अगर आपने सिर्फ इसका रट्टा लगा लिया, बी क्रूशियल टू समथिंग फॉर समथिंग, सो यू मे नॉट बी एबल टू यूज इट। So it's better to learn examples। Regular exercise is crucial for good health। Taking classes regularly is crucial for language improvement। Vocabulary class is crucial for language improvement। ठीक है, अपने भी सेंटेंसेस। बी डाइंग टू डू समथिंग, किसी चीज के लिए बेताब होना, किसी काम को करने के लिए मरे जाना। टू बी वेरी ईगर और डेस्परेट टू डू समथिंग। आई एम डाइंग टू सी द न्यू मूवी। आई एम डाइंग टू टेक योर क्लास, राइट? Some people are really dying to take my classes, and some people have died after taking my classes because they were cheesed off. They got fed up because we offer 9 hour session। He is dying to try the new restaurant। बेचैन है, बेताब है। I'm dying to visit my aunt। Be eager for something or to do something। किसी चीज के लिए पुरजोश होना। Eager, to be enthusiastic and keen। She was eager to start her new job। वो बहुत ही पुरजोश थी अपनी नई नौकरी को स्टार्ट करने के लिए। द चिल्ड्रन वर ईगर फॉर द हॉलीडेज। ही इज ईगर टू लर्न मोर अबाउट द सब्जेक्ट। याद करें इस कंस्ट्रक्शन को, देखें। आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश। आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश। आर यू ईगर फॉर समथिंग? देखो, फॉर समथिंग भी है और टू डू समथिंग भी है। डू का मतलब ये होता है कि आप कोई वर्ब लगाएंगे। आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश।
I'm eager to visit another country. Be fed up with. Be fed up with means आजिज होना. I am fed up with you. Fed up with somebody भी हो सकता है, fed up with something भी है. Are you fed up with me? She is fed up with her job. They are fed up with the delays. अच्छा, बी की जगह पर आप गेट भी लगा सकते हैं. I have got fed up. मैं तंग आ गया हूं. लिख लो अपने पास. मैं तंग आ गया हूं. I have got fed up. Get fed up भी हो सकता है. I'm getting fed up. मैं बस तंग आ रही हूँ बहुत ज्यादा. जो इस्तेमाल, why have you got fed up? तुम क्यों तंग आ गई हो भाई? बोली नहीं जाती मुझसे इंग्लिश. इंग्लिश बोली नहीं जाती तो उसका एक आसान फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारी बातों को कोई सुनता कब है. भाई सुनना शुरू कर दे. यकीन करे, सुनना शुरू कर दे. कीप लिसनिंग विथ कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी. यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. ये मेरा यकीन इसलिए बहुत ज्यादा यकीन है क्योंकि मैं लैंग्वेज रिसर्चर हूँ. लैंग्वेज टीचर तो छोटी चीज है. मैं आई एम अ लैंग्वेज रिसर्चर. हमने लैंग्वेज पे रिसर्च की है. हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज. लैंग्वेज कैन ओनली बी लर्न बाय लिसनिंग. इस बात को हमने प्रूव भी किया. यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज बाय लिसनिंग. yesterday I was trying to learn German language by just listening and listening. But one day is not enough. You have to be regular, you have to be consistent. She is fond of. Be fond of, देखो बी का मतलब होता है ये एसएमआर में खुल जाएगा. इस बी को एसएमआर में खोले, वॉल्सवर में खोले. शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स. कुछ बच्चे सोचोगे बी कहाँ गया भाई, तो बी खुल गया, एसएमआर में खुल गया प्रेजेंट में. आई वॉज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. He is quite fond of playing chess. They are fond of each other. नहीं, ये जुमला गलत है. They are fond of each other नहीं हो सकता. They are fond of cricket कर ले. They are fond of somebody नहीं होता. Fond of something होता है. They are fond of cricket. चलिए, ये ऊपर याद रखा करें. ये लिखा है ना, बी फॉन्ड ऑफ समथिंग, डूइंग समथिंग. आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड. बी इग्नोरेंट ऑफ समथिंग. बी का मतलब है एजएमआर. किसी चीज से नावाकिफ होना, ला इल्म होना. वी आर इग्नोरेंट ऑफ अवर फ्यूचर. हम अपने आने वाले कल से नावाकिफ हैं, ला इल्म है. ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द लॉ. उसको कानून से वो ला इल्म था. उसको कानून के बारे में पता ही नहीं था. दे आर इग्नोरेंट ऑफ द ट्रू सिचुएशन. उन्हें सच्चाई से ला इल्म है. वो कितना खूबसूरत सेंटेंस है. दे आर इग्नोरेंट ऑफ द ट्रू सिचुएशन. शी रिमेन इग्नोरेंट ऑफ हिज फीलिंग्स. वो उसके जज्बात से नावाकिफ रही. खूबसूरत तरीन सेंटेंस. बी ऑब्लाइज टू समबडी. मैं आपका एहसानमंद हूं. आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर योर हेल्प. कि आपने मेरी इतनी मदद की. शी फेल्ट ऑब्लाइज टू थैंक हिम. वी आर ऑब्लाइज टू आवर पेरेंट्स फॉर देयर सपोर्ट. मच ऑब्लाइज्ड. कितना सबसे खूबसूरत वर्ड मुझे लगता है. बी पॉसिटिव ऑफ समथिंग. किसी चीज की कमी होना, किल्लत होना, क्योंकि हमारे मुल्क में हर चीज की किल्लत है. देयर इज अ पॉसिटिव ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक. द पॉसिटिव ऑफ रिसोर्सेज मेड द टास्क डिफिकल्ट. देयर वाज अ पॉसिटिव ऑफ एविडेंस इन द केस. पॉसिटिव का मतलब है किल्लत होना, कमी होना. देयर इज अ पॉसिटिव ऑफ. अच्छा, आप देखो somebody नहीं लगा सकते कि अच्छे लोगों की कमी है. देयर इज अ पॉसिटिव ऑफ समथिंग. ठीक है ना. देयर इज अ पॉसिटिव ऑफ जॉब्स इन पाकिस्तान. बी प्रैक्टिकल. बहुत कॉमन सेंटेंस है. अमली होना, टू बी सेंसिबल एंड रियलिस्टिक इन अप्रोच. अक्सर हम लोग बोल देते हैं वी नीड टू बी प्रैक्टिकल अबाउट द सिचुएशन. बी प्रैक्टिकल. कम ऑन, बी प्रैक्टिकल. शी गेव practical advice on the matter.
It's practical to carry a first aid kit when traveling. Be practical. अक्सर इसको ये बोला जाता है, be practical. Be serious. संजीदा होना. Try to be serious in the class. As it is, please be serious when you talk about your future plans. She looked serious when she gave the presentation. Excuse me, be serious. Right? As it is बोल दिया जाता है, be serious. Be tired of somebody something. इसका मतलब भी यही है, किसी चीज से या शख्स से तंग आना. I am tired of, I am fed up, I am cheesed with. I'm tired of listening to the same excuse every time. बेटा आज देर से क्यों है सर, वो हमारी लाइट नहीं थी. I'm tired of listening to the same excuse every time. She is tired of the constant noise in the office. They are tired of his negative attitude. I'm tired of you, sir. Thank you very much. Be unwilling to do. मतलब किसी काम को करने में रजामंद ना होना. He was unwilling to help us with the project. He was unwilling to join language classes. अक्सर में एक क्वेश्चन आता है हमारी एडमिन की तरफ से आपके पास, Are you willing to join this course? I am unwilling to join this course. मैं भी राजी नहीं हूँ उस कोर्स को ज्वाइन करने के. They are unwilling to compromise on their principles. Beard, obviously everybody knows. दाढ़ी. Better half, शरीके हयात. A person's spouse or a romantic partner. वैसे बेटर हाफ का मतलब जो डिक्शनरी अब कह रही है उसका मतलब है हस्बैंड और वाइफ. ठीक है ना. इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर ले कि ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की मीनिंग्स में आ रहा है या वाकई इसका मतलब दूसरा ये भी है. मेरे ध्यान में तो सिर्फ एक ही मतलब था, बेटर हाफ. हम हमेशा अपने साथ ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी साथ रखा करें. ये देखें, ये हमारे पास सामने आ रही है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स. हम जब फिजिकली क्लासेस लेते थे तो हमारे साथ दो चीजें हमेशा साथ रहती थी, एक ग्रामर बुक और एक डिक्शनरी. अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात इतने आसान हो गए कि अब हमें कैरी नहीं करना पड़ता अपना बैग. बस हमने सिर्फ एक लिंक पर क्लिक करना है और हमारी डिक्शनरी आ जाती है. अच्छा, अब देखिए मैंने लिखा बेटर हाफ. बेटर हाफ बड़ा अच्छा वर्ड लगता है ये, बेटर हाफ. मैं आपको वो वोकैबुलरी देता हूं जो कॉमनली इन यूज है. मैं डिक्शनरी खोल के वोकैबुलरी नहीं दे रहा आपको कि ये वर्ड लिख लो. ये वो वोकैबुलरी है, मेरे सामने मेरी पूरी नोटबुक रखी है जो मैंने तकरीबन 10-12 साल में की मेहनत है. तो वो उससे मैं आप लोगों के नोट्स डिजाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस किताब को पूरी किताब की शक्ल देनी. तो आने वाले चंद हफ्तों में इंशाल्लाह ये पूरी किताब कंपाइल्ड हो जाएगी, तो फिर पूरी एक किताब की शक्ल में हम आपको दे देंगे. देखिए बेटर हाफ का मतलब कहता है द पर्सन दैट यू आर मैरिड टू. हमें ये वाला मतलब चाहिए, हमारे कल्चर में यही चल रहा है. ठीक है ना. इज ही योर बेटर हाफ? इज ही योर. अच्छा, इसका तलफ्फुज भी देख लेते कुछ गड़बड़ ना हो. बोला नहीं है. Better half. Better half. बेटर हाफ Better half. Better half. सही है, कोई गड़बड़ नहीं है. आप इस बेटर हाफ की मीनिंग्स शरीके हयात लिख लें. ठीक है ना. आई कांट गो टू द पार्टी विदाउट माई बेटर हाफ. वेयर इज योर बेटर हाफ? अच्छा लग रहा है ना वर्ड. ही ऑलवेज लिसन टू हिज बेटर हाफ एडवाइस. अच्छी बात है. आई ऑलवेज लिसन टू माई बेटर हाफ एडवाइस बट आई फॉलो माई ओन. Spending time with his better half is his favorite part of the day. Yes. Big bug. कितना खूबसूरत सेंट है. सारी बहुत अच्छी वोकैबुलरी आपको मिल रही है. बड़ी शख्सियत. He is a big bug in the company now. Look at him. He's a big bug. कहते हैं ना बड़ी शख्सियत, an important and influential person. Imran Khan is a big bug these days, right? So the big bugs attended the conference to discuss the future of the industry. Being a big bug comes with a lot of responsibilities. I am not a big bug. I'm a very
small person. Big hearted, Farag Dil, kind, generous. He is big hearted and always willing to help others. Rahem Dil, बड़े दिल वाला. बिस्ट्रो, बड़ा अच्छा जुमला है. हम लोग जब पढ़ते थे ना फिजिकली, तो ये वर्ड बड़ा इस्तेमाल होता था. क्योंकि हम अपनी क्लासेस लेने के बाद हम कहते थे लेट्स गो टू बिस्ट्रो, आई स्मॉल इनएक्सपेंसिव रेस्टोरेंट. जैसे हम पठान के होटल पे चले जाते थे, तो वो जो पठान का होटल होता है, ढाबा होता है, उसको कहते हैं बिस्ट्रो. अच्छा, इसका तलफ्फुज भी चेक करते हैं. बहुत पुराना वर्ड है हमारे मेमोरी में, तो हम चेक करते हैं. बिस्ट्रो, इसमें कोई गड़बड़ ना हो. देखो सर की एक आदत अपनाओ, जितने वर्ड्स तुम लोग पढ़ रहे हो ना, उसको प्लीज जाकर उसके तलफ्फुज को वेरीफाई करना. bistro, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है. Bistro. बिस्ट्रो, bistro, मान लिया, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है. बिस्ट्रो, ढाबा लिख सकते हैं. वी हैड लंच एट अ कॉजी बिस्ट्रो डाउनटाउन. The bistro serves delicious coffee and pastries. They opened a new bistro near our office. Bitter or sweet, खुशगवार और तल्ख, having both pleasant and painful feelings. It was a bittersweet moment when she left for college. कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम. तो कहीं पर वो मुस्कुरा भी रहे थे, कहीं पे कुछ लोग रो भी रहे थे. सो बिटर एंड स्वीट मूवमेंट्स, कितना खूबसूरत वर्ड है. देखो ये वर्ड्स नहीं मिलते, ढूंढने से नहीं मिलते. द मेमोरी ऑफ देयर लास्ट डे टुगेदर वाज बिटर स्वीट. Graduation was bittersweet as they were happy but also sad to leave friends. Yes, bribe, ये तो हमारे माशरे में बड़ी आम है. आप सबको पता है, रिश्वत. रिश्वत, don't take bribe. He tried to bribe the officer. Bribe verb भी है, तो he tried to bribe the officer. He tried to give bribe to the officer to avoid a ticket. Offering a bribe is illegal and unethical. सेंटेंसेस भी बहुत खूबसूरत आपको मिले, ये कॉमनली यूज सेंटेंसेस है. बुफन, मस्खरा. मस्खरा इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, कॉमिकली अ पर्सन हु बिहेव्स. मस्खरा होता है ना, कोई ना कोई आपके छोटे चाचू है, मामू है, आपके साथ तफरिया कर रहे होते हो, हंसा रहे होते हैं. सो स्टॉप बीइंग अ बुफन एंड टेक दिस सीरियसली. द बुफन्स antics entertain the children. He acted like a buffon during the meeting and making everyone laugh. Bulky, last word of the day. I am getting bulky day by day. It means large and difficult to carry or handle. अच्छा, इसमें bulky जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने जो bulky जिस सेंस में मुझे मेरे जहन में मोटा पेट, थोड़ा सा जिसका वजन ज्यादा हो जाए बैठे बैठे पढ़ाते पढ़ाते, तो हम बल्कि पे जा रहे हैं. तो बल्कि के बहुत सारे मीनिंग्स आ रहे हैं. पहला मीनिंग्स देखते हैं. कहता है लार्ज एंड डिफिकल्ट टू मूव, बल्कि आइटम्स विल बी कलेक्टेड सेपरेटली. लेकिन मेरे देखो आ गया, ऑफ अ पर्सन टॉल एंड हैवी. मेरे जहन में ये वाली मीनिंग्स बैठी हुई थी. मैंने द बल्की फिगर ऑफ इंस्पेक्टर जोन्स अपीयर्ड. ही इज बल्की, इट मींस ही इज टॉल एंड हैवी. और इसका एक और मीनिंग्स भी है आपके सामने, लार्ज एंड डिफिकल्ट टू मूव और कैरी. मतलब द की फेल्ट बल्की इन हिज पॉकेट. शी लेड टू बल्की फाइल्स ऑन द टेबल. मतलब भारी भरकम, उर्दू लिखना चाहे तो भारी भरकम कहते ना, भारी भरकम. ठीक है भाई. सो यहाँ से हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, बल्कि ये खत्म ही हो गई है पीडीएफ. इसको पूरा कर लेते हैं. बॉइस्ट्रियस, नॉइजी, पुरजोश, एनर्जेटिक. द बॉइस्ट्रियस क्राउड cheered for their team. Boisterous, पुरजोश. Bumptious, मगरूर, घमंडी. He is bumptious. His bumptious attitude made him unpopular among his peers. Bluff, धोखा देना, बहुत ही कॉमन वर्ड है. He tried to bluff his way through the interview. धोखा देना. I knew he was bluffing about his credentials. आप लोगों को शायद bluff का जो है वो सिर्फ नेगेटिव मीनिंग्स ही पता हो, लेकिन इट कैन बी यूज्ड इन अ पॉजिटिव वे एज धोखा देना. ब्रिस्क यानी कि तेज, फुर्तीला. ब्रिस्क वॉक, they went for a brisk walk to clear their minds. Brisk business kept the shop busy all day. He gave a brisk nod and left the room. ठीक है बेटा, I will share this PDF and this lecture with you. Memorize them.
I'll see you inshallah again day after tomorrow in live vocabulary session on Wednesday. And tomorrow you can join me in one-to-one discussion session. Same timing. Assalamu alaikum.